علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر شام سے لے کر کے اب تک ماشاءاللہ نہ تو منفرد کبھی تو چلا، اور اس چھوٹی سی محفل میں الحمدللہ 3 تقریباً ہوئی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک تقریب بھی ہے۔ قاری محمد احمد صاحب بہرائچی کا بیان آپ نے سنا، شاید بھائی پر اس بستی میں تحقیق اور مولانا مولوی صاحب کو تو آپ سنتے رہتے ہیں، مولانا مولوی صاحب کے ہیں، آپ مولانا مولوی سے یہ مان کے چلیے ان کا یہ گھر ہے، جب چاہیں تو بلا لیں وہ آ جائیں گے، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ قاری جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں کی وجہ سے یہ حضرات بہت آسانی سے مہیا ہو جاتے ہیں۔ آج کی محفل پاک مرحوم شاہد علی کے فاتحہ سالانہ فاتحہ کے موقع پر اس محفل کو رچایا گیا ہے، سجایا گیا ہے، منایا گیا ہے۔ جس محفل کا ٹائٹل دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ جانتے ہیں اصلاح معاشرہ کانفرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو ذرا یہ بات ہے، کچھ تو بولو یار۔ اصلاح کا مطلب جانتے ہو؟ بولو، نہیں جانتے ہو؟ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یہ جلسہ سجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جلسہ سجا ہوا ہے۔ نمبر 1 بات خوب سمجھ لیجیے ہماری بات، یہ محفلیں جب سجا کریں، جب ایسی راتیں آیا کریں تو میرے عزیزوں اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، کیونکہ راتیں تو روز آتی ہیں، راتیں تو بہت آتی ہیں، لیکن یہ راتیں کبھی کبھی ملتی ہیں۔ سوتے تو ہم روز ہیں، سوتے تو ہم روز ہیں، اپنی نیند کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن یہ رات جب آتی ہے جو سو کر کے نہیں پاتے ہو، اور یہ رات جب آتی ہے، اس رات میں شب بیداری کرتے ہو، جاگتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہو، تو میرے عزیزوں اس محفل پاک میں آؤ گے تو کچھ نہ کچھ لے جائیں۔ میں نے کہا تھا اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر اس محفل میں کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمانبردار آتا ہے، اپنے ماں باپ کا کوئی نافرمانبردار آتا ہے، اس محفل پاک سے رخصت ہوتا ہے۔ اگر اس کی دماغ میں کوئی بات فیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں کوئی بات لگ جاتی ہے تو وہ اس محفل پاک سے رخصت ہوتا ہے، تو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بندہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس محفل پاک میں کوئی بے نمازی آتا ہے، اگر اس محفل پاک میں کوئی بے نمازی آتا ہے اور اس محفل پاک سے رخصت ہوتا ہے تو دل میں اپنا پکا یہ ارادہ لے کر کے جاتا ہے انشاءاللہ تعالی آنے والی فجر سے ہم پر رفتہ با جماعت نمازی ہوگی۔ اس محفل پاک میں
पाक से रुखसत होता है तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाता है कि आज के बाद से ये अपने गंदे फेल को हम छोड़ करके जाएंगे। तब महफिल को सजाना भी कामयाब होता है, महफिल में आना भी कामयाब होता है, महफिल में जो बोला जाए उसका बोलना भी कामयाब। इसको कहते हैं इस्लाह। हमारी इस्लाह हो गई, हमको नहीं मालूम था, हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, हमारे उलमाए किराम ने आए, उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने तकरीर करने के बाद हमको समझाया, समझाने के बाद हमारी समझ में आया, हम उसके अपने गंदे फेल से तौबा कर ली, हम अच्छे हो गए, नेक बन गए, अच्छे बन गए, सच्चे बन गए। मेरे अजीजों, ये महफिलें जब नूरानी आया करें तो अपने सारे कामों को छोड़ दिया करो, अपने घरों को छोड़ दिया करो, इस महफिल पाक में आ जाया करो। आओगे तो कुछ पाओगे, और जब पाओगे ये महफिल क्या होती है, ये महफिलें क्या होती है, ये महफिलें तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। ये महफिलें कब समझ में आएंगी, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल होने के बाद हम गुनाहों से लबरेज हैं, गुनहगार है, सियाहकार है, बदकार है, हमारे पास कुछ नहीं है। जब हिसाब किताब होगा तो यही सरजमीन बरोज़ क़यामत गवाही देगी, ए नारी दाना, ये गुनहगार सही, सियाहकार सही, बदकार सही, लेकिन जलाली की सरजमीन पर तेरा और तेरे रसूल का जिक्र हो रहा था, उसमें ये बैठे हुए थे, अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह की सना बुलंद कर रहे थे। कसम खुदा की, कसम खुदा की, यही सुभान अल्लाह तुम्हारी जो सदा होगी, सकता है तुम्हारे नजरिए न नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा बिलगिरामी शहजादे मसलके आला हजरत तो मेरे अजीजों, महफिल में आया हो तो कुछ न कुछ ले करके जाए। महफिल सजाना भी कामयाब होगा, महफिल को आना भी कामयाब होगा, महफिल में जो बोला जाए उसका बोलना भी कामयाब होगा। इतना मजमा है, इतने मजमे में इतनी नसीहतें हुई हैं, किसी एक नसीहत पर भी कसम खुदा किसी एक शख्स ने भी अमल कर लिया, पता नहीं तो कल वो क़यामत में कितनों के लिए जरिए न जाए। ये महफिलों की कद्र किया, इन महफिलों में आया करो, लेकिन आने के बाद अदब से बैठा और जो बातें की जाए उसको गौर से सुना करो, सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश किया। कि आज मेरे अजीजों, सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं, हर घर में मोहम्मद इस्लाम तो है, ठीक है, हर घर में मोहम्मद इस्लाम है, लेकिन सिर्फ इस्लाम नाम के है। हम अपने काम को छोड़ चुके हैं, हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं, न हमारे पहनावे से हम पहचाने जा रहे हैं, न हमारे चेहरे से हम पहचाने जा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं, बोलिए, ऐसा क्या हो गया? क्यों? पहले कोई और मुसलमान थे, आज कोई और? हमारी कमी है जी, हमारी कमी है। हाँ चचा भैया, क्या बात है। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत सलामती अता फरमाए। अपने रास्ते को जो छोड़ा है उस रास्ते को पकड़ो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। कुछ नहीं बिगड़ा है। आज हम कितनी हकालत की रश देते हैं, एहसास है इसका? कोई भी इंसान हमको अच्छी नजर से देख रहा है, और यही कौम, कल वाली कौम जो थी, यही कौम सरदार मानी जाती थी, है? कहीं पे कोई फैसला होता था, उस फैसले में अगर कोई एक मुसलमान होता था तो कहने वाले ये कहते कि तुम झूठ बोल सकते हो, वो झूठ बोल सकता है, ये झूठ बोल सकता है, लेकिन मुसलमान का बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता।
मुसलमान का बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता। मुसलमान बोलेगा तो सच बोलेगा, अगर हमारा फैसला करेगा तो हक फैसला करेगा। ऐसा होता था, लेकिन आज एक भाई दूसरे भाई का हक मारने के लिए तैयार है। एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा है। एक भाई की तरक्की से दूसरा भाई जो है खुश नहीं हो रहा है। उसकी टोह में लगा हुआ है, ये कैसे तरक्की कर रहा है, कहां से ला रहा है, क्या कर रहा है? यह फितरत हमारे अंदर की नहीं है। तो गड्ढे में हम जाएंगे तो लोग यहाँ तक आया है, अगर कोई मुसलमान तरक्की करता है तो उसी तरक्की देख करके तुम नाराज न हो बल्कि खुशी जाहिर करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीजा पेश करो, या अल्लाह हमारे भाई को तूने तरक्की दी है और तरक्की दे। हो सकता है हम कमजोर हैं, हमारा भाई मजबूत है, खुदा न खास्ता कोई मुसीबत का दिन हमारे ऊपर आए, हमें कुछ जरूरत पड़े, ये भाई हमारे काम आ सके, ये भाई हमारे काम आ सके, ये मेरा मुसलमान वही है, लेकिन हमने अपने रास्ते को बदल दिया है। जो हमारा रास्ता था उस रास्ते को छोड़ दिया है, हमने दूसरे रास्ते को पकड़ लिया है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सवेरा है। कल हम जब इतने से कसम खुदा की हुकूमत करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कसम खुदा की गुलामी की कगार कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर कमी है। मस्जिदों से सदाएं बुलंद होती हैं अल्लाहु अकबर की, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे पास बात क्यों नहीं है? हमारे मियां थोड़ा सा वक्त निकालो, अपने घर की परेशानियों को खत्म करना चाहते हो, अपने घरों को जो शैतानियत से भर दिया है उस शैतानों को अपने घर से निकालना चाहते हो, तो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा दो। मुअज्जिन जब अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करे तो घर को छोड़ दो और मस्जिद की तरफ अपने कदम को बढ़ा दो। कसम खुदा की तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस महफिल पाक से गुजरत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा करके जाओ, इंशाअल्लाह ताला आने वाली फजर से ऊपर अपना बाजमात नमाजी बन करके जाएंगे, एक और नेक बन करके जाएंगे, अपने दिलों में मोहब्बत और आग लेकर के जाएंगे। बात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।